الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما إياك نعبد وإياك نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کلام عرب جو ہے اس میں حروف اصلی اور زائد کو کیسے پہچانا جاتا ہے، کہ کون سے حروف اصلی ہے اور کون سے حروف زائد ہے، اور ان حروف کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، حروف اصلی کون ہے اور حروف زائدہ کون کون سے ہے، اور ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وزن استعمال ہوتا ہے، ترازو ایک ہے ہمارے پاس، صرفیوں کے ایک ترازو ہے، جو اس ترازو میں آئے گا، اس پیمانے میں آئے گا، اسے حروف اصلی کہیں گے۔ جو اس ترازو میں نہیں آئے گا تو وہ اسے حروف زائدہ کہیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ لفظوں کو تولنے کے لیے صرفیوں نے فا عین لام کو پیمانہ مقرر کیا ہے، ترازو مقرر کیا ہے۔ لفظوں کو تولنے کے لیے ترازو کیا ہے؟ فا عین اور لام ہے۔ اب جو حروف فا عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ حروف اصلی ہوں گے، جو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہیں آئیں گے وہ حروف زائدہ ہوں گے۔ یہ سمپل سا طریقہ ہے، فارمولہ ہے۔ فا کلمہ وہ حرف ہے جو فا کلمے کے مقابلے میں آئے گا، عین کلمہ وہ حرف ہے جو عین کے مقابلے میں آئے، اور لام کلمہ وہ حرف ہے جو لام کلمے کے مقابلے میں آئے۔ جو کس کے مقابلے میں آئے؟ لام کلمے کے مقابلے میں آئے۔ جیسے ضربہ، یہاں پہ مثال آپ کو دیکھ رہے ہیں، ضربہ۔ اب فعل ہمارے پاس ترازو ہے، فعل کیا ہمارے پاس میزان ہے، ترازو ہے۔ ضربہ کس کے وزن پر ہے؟ فعل کے وزن پہ۔ اب یہ ضاد جو ہے فا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے۔ با کیا ہے؟ لام کلمہ ہے۔ اب نصرہ بھی دیکھیں، نصرہ، یہ ترازو میزان اور ترازو کا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، نصرہ، اس کے ساتھ ہی فا لکھ لیں، فعل، فعل۔ اب دیکھیں یہاں پہ نون جو ہے یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ فا کلمے میں، تو نون جو ہے فا کلمہ ہے۔ صاد جو ہے یہ عین کلمے کے مقابلے میں ہے، صاد جو ہے کس کے مقابلے میں؟ عین کلمے میں، تو صاد عین کلمہ ہے۔ را جو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے، تو را جو ہے لام کلمہ ہے، را جو ہے یہ لام کلمہ ہے۔ تو حروف اصلی اور حروف زائدہ کو پہچاننے کے لیے صرفیوں نے ایک ترازو مقرر کیا ہے، اور وہ ہے فا عین لام کلمہ۔ تو جو حروف وزن کرنے میں فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے ان کو حروف اصلی بولتے ہیں۔ جو حروف وزن کرنے میں فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آ جائے انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلی کہتے ہیں۔ تو فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آئیں گے انہیں کیا کہیں گے؟ حروف اصلی کہیں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا نصرہ میں تینوں حروف اصلی ہے، نصرہ میں کیا ہے؟ تینوں حروف اصلی ہے، کیونکہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہے، کوئی زائد حرف نہیں ہے،
तो ये तीनों हरूफ क्या है, असली है, ये तीनों हरूफ असली है। हरूफ ज़ायदा को समझिए, वो हरूफ जो वजन करने में फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में वाक़ ना हो, फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में वाक़ ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, हरूफ ज़ायदा कहेंगे। जैसे मिसाल दी है अकरमा, अकरमा हमने मिसाल दी है। अब देखिए इसके मुकाबले में हम वजन तराजू लेके आते हैं, ये अफ़अला हम तराजू लेके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे काफ जो है ये फा कलमे के मुकाबले में आ गया, रा जो है ये आइन कलमे के मुकाबले में आ गया, मीम जो है ये लाम कलमे के मुकाबले में आ गया। ये तो हरूफ असली है, ये क्या है, हरूफ असली है जो कि फा कलमे के मुकाबले में आ गए। अलबत्ते ये शुरू में जो हमजा है, ये शुरू में क्या है, ये जो हमजा है ये जायद हर्फ है, ये क्या है, जायद हर्फ है। क्यों, इस वजह से कि ये फा कलमे के मुकाबले में नहीं है, ये फा कलमे के मुकाबले में नहीं है। ये फा कलमे, फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में नहीं है, इस वजह से ये क्या हो गया, ये हर्फ जायद हो गया। तो अब ये वजन करने का फायदा क्या हुआ, वजन करने का फायदा एक तो ये होता है कि हमें हरूफ असली और हरूफ ज़ायदा की पहचान होती है, हरूफ असली और हरूफ ज़ायदा की हमें पहचान हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हरूफ के सकनात और हरकत की पहचान हो जाती है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि किसी कलमे के हज़फ होने ना होने की पहचान भी होती है, किसी कलमे के हज़फ होने ना होने की भी पहचान होती है। तो ये हरूफ असली और हरूफ ज़ायदा की पहचान समझ में आ गई सबको या नहीं, हरूफ असली और हरूफ ज़ायदा की पहचान हो गई। जी, हरूफ असली की एक तारीफ अस्सलाम तो आपको वालेकुम यही बताई कि उस्ताद जी, हुरूफ ज़ायदा जो दोबारा बता फा दें। आइन लाम कलमे के मुकाबले में आए, जो फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में आए उन्हें हरूफ असली कहते हैं। ठीक है, एक और तारीफ भी बाज़ सरफियों ने की है कि वो हरूफ, बाज़ सरफियों ने एक तारीफ की है कि वो हरूफ जो मुजर्रद और मजीद के तमाम अबवाब में आए, तो मुजर्रद और मजीद के तमाम गर्दानों में या तमाम अबवाब में आए, जो मुजर्रद और मजीद के तमाम गर्दानों में आए और किसी कायदे के बगैर हज़फ ना हो। दूसरी तारीफ क्या की हरूफ असली की, वो हरूफ जो मुजर्रद और मजीद के तमाम गर्दानों में आए और किसी कायदे के बगैर हज़फ ना हो, तो उन्हें हरूफ असली कहते हैं, हरूफ असली कहते हैं। मुजर्रद और मजीद की वजाहत अभी आ रही है, मुजर्रद और मजीद की वजाहत अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हरूफ ज़ायदा की बात मैंने आपको बताई, हरूफ ज़ायदा कि वो हरूफ जो वजन करने में फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में ना हो, फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में ना हो।
ठीक है। अब हुरूफ ज़ायदा की 3 किस्में हैं। हुरूफ ज़ायदा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 ज़ाइदा बराए इश्तिक़ाक़। नंबर 1 हुरूफ ज़ाइदा बराए इश्तिक़ाक़। नंबर 2 हुरूफ ज़ाइदा बराए नक़्ल बाब। नंबर 3 हुरूफ ज़ाइदा बराए इल्हाक़। हुरूफ ज़ाइदा की कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हुई। हुरूफ ज़ाइदा बराए नक़्ल बाब, हुरूफ ज़ाइदा बराए इश्तिक़ाक़ और हुरूफ ज़ाइदा बराए इल्हाक़। ठीक है। हुरूफ ज़ाइदा बराए इश्तिक़ाक़ से मुराद वो ज़ाइद हर्फ, वो ज़ाइद हुरूफ या हर्फ जो एक कलिमा से दूसरा कलमा बनाते वक्त पढ़ाए जाए। वो ज़ाइद हुरूफ जो एक कलिमा से दूसरा कलिमा बनाते वक्त बढ़ाए जाते हैं, जैसे ज़रब से यज़रिबु, ज़रब से यज़रिबु, ज़रब से हमने यज़रिबु बना लिया। अब यहाँ पे या का इजाफा कर दिया, यज़रिबु में जो या का इजाफा किया है ये भी हुरूफ ज़ाइदा है, लेकिन ये हुरूफ ज़ाइदा बराए इश्तिक़ाक़ है, हुरूफ ज़ाइदा बराए इश्तिक़ाक़ है। ठीक है। इसी तरह दूसरी किस्म वो ज़ाइद हुरूफ है, वो ज़ाइद हुरूफ है जो एक बाब से दूसरा बाब बनाते वक्त पढ़ाए जाते हैं, जैसे करुम से अकरमा। करुम सुलासी मुजर्रद का बाब है, अकरमा ये सुलासी मजीद फी का बाब है। अब यहाँ पे सुलासी मुजर्रद से सुलासी मजीद फी बनाते हुए हमजा का इजाफा किया गया है। अब ये हमजा जो है ये हर्फ ज़ाइद है, ये हमजा क्या है? हर्फ ज़ाइद है। तो ये ज़ाइद बराए नक़्ल बाब है कि एक बाब से दूसरा बाब बनाते वक्त इसको इस्तेमाल किया गया है, बढ़ाया गया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हुरूफ ज़ाइदा बराए नक़्ल बाब। और तीसरी किस्म है हुरूफ ज़ाइदा बराए इल्हाक़। तो वो ज़ाइद हुरूफ, वो ज़ाइद हुरूफ जो एक कलिमा को दूसरे कलमे के हम वजन करने के लिए बढ़ाए जाते हैं। वो ज़ाइद हुरूफ जो एक कलिमा को दूसरे कलमे के हम वजन करने के लिए बढ़ाए जाते हैं, जैसे जलबा। जलबा एक लफ्ज है। अब इस लफ्ज को दहरजा के वजन पे बनाना है। किसके वजन पे? दहरजा के वजन पे बनाना है। ये बन जाएगा जलबा।
जलबबा। अब यहाँ पे जलबा के ऊपर एक बा का इजाफा कर दिया। ये हर्फ जायद तो है, लेकिन हर्फ जायद बराए इल्हाक है, क्योंकि लफ्ज जलबा को हमने दहरजा के वजन पे बनाना था, लफ्ज दहरजा के वजन पे बनाना था। अब जब हमने दहरजा के वजन पे बनाना है तो इसको जलबबा करेंगे तो दहरजा के वजन पे हो जाएगा, दहरजा के वजन पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो जायद हर्फ है इसको हम क्या कहेंगे? जायद बराए इल्हाक। तो खुलासा ये हुआ, जो असल मकसूदी चीज़ है कि फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में जो हरूफ आ जाए उन्हें हरूफ असली कहते हैं। ठीक है, जो फ़ाइल लाम कलमे के मुकाबले में ना आए उन्हें हरूफ ज़ाइद कहते हैं। और फिर हरूफ ज़ाइद की हमने 3 किस्में पढ़ी है। ज़ाइद जो है बराए इश्तिक़ाक़ भी होते हैं, नक़ल बाब के लिए भी ज़ायद होते हैं, इल्हाक़ के लिए भी ज़ायद होते हैं। ठीक है, और वज़न करने का फ़ायदा मैंने तकरीबन 3 फ़वाइद बताए। वज़न करने से हमें 3 किस्म के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। एक तो ये कि हरूफ असली और हरूफ ज़ायदा की पहचान हासिल हो सकती है। दूसरा ये कि हरूफ के हरकत और सकनात मालूम होते हैं कि कौन सा हर्फ साकिन है, कौन सा हर्फ जो है उसके ऊपर ज़बर है, किस पे पेश है, किसके ऊपर ज़ेर है। तो हरूफ की हरकत और सकनात हमें मालूम हो जाते हैं। इसी तरह कलीमा के हज़फ होने या ना होने का भी पता चलता है कि इस कलमे में अल्फाज महजूफ भी है या सारे मौजूद है। अल्फाज जो है महजूफ भी है या सारे के सारे मौजूद है, इसका भी हमें पता चलता है, इसका भी हमें पता चल जाता है। अब एक और मिसाल दे देता हूँ फिर आगे चलते हैं। इज्तनबा, इज तनाबा। अब देखें ये इफ्ताला के वजन पर है, इफ देखिए ये हमजा जो है हमजा के मुकाबले में आ गया, ये जायद हर्फ है। जीम जो है फा कलमे के मुकाबले में आ गया, जीम फा कलमे के मुकाबले में आ गया। ये क्या है? असली हर्फ है। जीम जो है असली हर्फ है। ये लफ्ज ता जो है ता के मुकाबले में आ गया, तो ये क्या है? ये भी जायद हर्फ है। नून जो है नून, ये आइन कलमे के मुकाबले में आ गया, नून आइन कलमे के मुकाबले में आ गया, तो ये भी असली हर्फ है। जीम और नून जो है ये असली हर्फ हो गए। बा जो है लाम कलमे के मुकाबले में आ गया, ये भी असली हर्फ है, ये भी असली हर्फ है। तो गोया कि इज्तनबा में 3 असली हर्फ है, जीम नून बा। जनबा, जीम नून बा, क्योंकि ये फा और आइन के कलमे के फा आइन लाम कलमे के मुकाबले में है, और इसमें 2 हरूफ जायद है, एक हमजा है जो फा कलमे से पहले है, और एक ता है जो फा कलमे के मुकाबले फा कलमे के बाद है, फा कलमे के बाद है। अब ये किस लफ्ज का कौन सा वजन होगा, किस लफ्ज का कौन सा वजन होगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये भी अभी आपको पता चल जाएगा आज ही के सबक में इंशाल्लाह। ठीक है, उमूमन फ़अला का वजन होगा, उमूमन आपके पास फ़अला की तराजू होगी, लेकिन फ़अला के ऊपर कुछ अल्फाज इजाफा करेंगे, ये आपको पता चल जाएगा। उमूमी वजन जो हमारे पास है तराजू है, फ़अला है, फ़ा आइन लाम है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें इजाफा कर देते हैं, मसलन हमजा का इजाफा करते हैं, बाज़ औक़ात ता का इजाफा करते हैं, नून का बाज़ औक़ात करते हैं, बाज़ का सीन ता का इजाफा करते हैं। इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे। ठीक है, किन किन हरूफ का इजाफा करेंगे वजन के लिए, किन किन हरूफ का इजाफा करेंगे वजन करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अब ये हरूफ असली
اور حروف زائد کے اعتبار سے ثلاثی کی یا حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں. فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ثلاثی اور رباعی. فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی وہ فعل ہے جس میں اصلی حروف تین ہو، جس میں اصلی حروف کیا ہو؟ تین ہو. اور رباعی وہ فعل ہے جس میں اصلی حروف چار ہو. ثلاثی سے مراد کیا؟ جس میں اصلی حروف تین ہو. رباعی سے مراد جس میں اصلی حروف چار ہو. فعل کے وزن پہ جو بھی آئے گا تو وہ ثلاثی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ ثلاثی ہوگا. اور دحرجہ کے وزن پہ آئے گا تو وہ رباعی ہوگا. تو ثلاثی اور رباعی کی تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے، جس میں تین حروف اصلی ہو. اصلی کی قید بھی ہے، ٹھیک ہے. رباعی جس میں چار حروف اصلی ہو، جس میں کیا ہو؟ چار حروف اصلی ہو. پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں. ثلاثی کی بھی دو قسمیں ہیں اور رباعی کی بھی دو قسمیں ہیں. ثلاثی کی بھی دو قسمیں ہیں اور رباعی کی بھی دو قسمیں ہیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی. ان میں سے ہر ایک کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو قسمیں ہو گئی. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، اور رباعی مجرد، رباعی مزید فی. تعریف وہی رہے گی کہ ثلاثی میں تین حروف ہی رہیں گے، رباعی میں چار حروف ہی رہیں گے. تو ثلاثی مجرد سے کیا مراد ہے؟ وہ ثلاثی ہے. ثلاثی مجرد سے مراد وہ ثلاثی ہے جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو. یعنی ثلاثی مجرد اس میں تینوں کے تینوں حروف اصلی ہو، کوئی زائد حرف نہ ہو، جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں تینوں کے تینوں حروف اصلی ہو، زائد کوئی حرف نہ ہو. جیسے نصارہ، نصارہ. اب یہاں پہ تینوں حروف جو ہے نون، صاد اور را، یہ تینوں حروف اصلی ہے، تینوں حروف اصلی ہے. ٹھیک ہے. مجرد کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا. شادی نہ ہوئی ہو اسے بھی مجرد بولتے ہیں. اکیلا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اکیلے ہونے سے مراد کیا ہے؟ خالی ہونے سے کیا مراد ہے؟ حروف زائد سے خالی ہو، حروف زائد ساتھ میں نہ ہو، صرف حروف اصلی موجود ہو. یہاں صرف حروف اصلی کا راج ہو، حروف زائد کی پارٹنرشپ ان کے ساتھ نہ ہو. تو ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے نصرہ. اور ثلاثی مزید فی، مزید فی کا معنی ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی حروف اصلی کے علاوہ حروف زائد بھی ہوں گے، حروف اصلی کے علاوہ حروف مزید بھی ہوں گے، زائد حروف بھی ہوں گے، جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو. جیسے اجتنبا، افتعل کے وزن پر ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ اصلی حروف جیم نون با ہے، لیکن حمزہ اور تا جو ہے، الف اور تا اس میں اضافہ ہے. الف اور تا کیا ہے؟ اس میں اضافہ ہے. اسی طرح اکرما، کاف را میم جو ہے یہ فاعل لام کلمے کے مقابلے میں اور حروف اصلی ہے، لیکن الف جو ہے اس کا اضافہ ہے، حروف زائد ہے. تو یہ ثلاثی مزید فی ہو گیا. یہی رباعی مجرد کی تعریف ہے. رباعی مجرد وہ رباعی ہے جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں حروف زائد نہ ہو، حروف اصلی ہی ہو. جیسے دحرج فعلل کے وزن پہ، دحرج فعلل کے وزن پر. اب آپ نے پوچھا تھا کہ وزن کیسے کریں گے، کون کون سا حرف نکالیں گے. اب دیکھیے رباعی کے لیے فعلل کا وزن نکالیں گے. رباعی کو تولنے کے لیے کیا نکالیں گے؟ رباعی مجرد کو تولنے کے لیے فعلل، فعلل دحرج. ٹھیک ہے. رباعی مزید فی کی تعریف بھی یہی ہے کہ اس میں زائد حروف ہوں گے، کہ وہ رباعی ہے اس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی زائد حرف بھی ہو. جیسے تدحرج تفعلل کے وزن پہ، تدحرج تفعلل کے وزن پہ. اب یہاں پہ تا جو ہے حرف زائد ہے، تا جو ہے
حرف زائد ہے، جو ہے حرف زائد ہے۔ یہاں تک امید کرتا ہوں کہ تعریفیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی کا معنی ہے کہ جس میں 3 حروف اصلی ہو کوئی، ٹھیک ہے، اور رباعی کا معنی ہے جس میں 4 حروف اصلی ہو۔ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مجرد اور مزید فی۔ ثلاثی مجرد سے مراد کہ ماضی کے واحد مذکر غائب کی صیغے میں 3 حروف اصلی ہو، کوئی زائد حرف نہ ہو، اور مزید فی جس میں حروف زائد بھی ہو، حروف اصلی کے علاوہ زائد بھی ہو۔ رباعی مجرد سے مراد جس کے ماضی میں واحد مذکر غائب کے صیغے میں 4 حروف اصلی ہو، کوئی زائد نہ ہو، مزید فی کے حروف زائدہ بھی موجود ہو۔ تو یہ آپ نے یاد کر لیے، یہ کیا کر لیے، یہ بہت اہم سبق ہے، یہ اہم سبق ہے، اس کو آپ نے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اب اس کے ابواب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اس کے کیا بتا رہا ہوں، ابواب، ٹھیک ہے، یہ ابواب اپنے زبانی یاد کرنے ہیں، یہ ابواب اپنے زبانی یاد کرنے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد جو ہے اس کے 6 ابواب ہے، ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہے، 6 ابواب ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے۔ نصر ينصر، ضرب يضرب، سمع يسمع، فتح يفتح، كرم يكرم، حسب يحسب، حسب يحسب، یہ 6 ابواب جو ہے یہ ثلاثی مجرد کے ہیں۔ یہ کیا ہے، 6 ابواب ہے، ثلاثی مجرد کے ہیں۔ ثلاثی مجرد کی کیا ہے، 6 ابواب ہے۔ نصر ينصر، ضرب يضرب، سمع يسمع، فتح يفتح، کرم یکرم، اور حسب یحسب۔ اب اس کو دوسرے انداز سے بھی ذرا تعبیر کر لیں، اس کو ذرا دوسرے انداز سے، نصر ینصر کو تعبیر کیا جاتا ہے ماضی مفتوح العین۔ ماضی کیا ہے، مفتوح العین ہے، یعنی ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے۔ ماضی مفتوح العین سے مراد کیا ہے، ماضی مفتوح العین مضارع مضموم العین۔ کیا معنی کہ ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہے اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے، ٹھیک ہے، ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم۔ جیسے نصر، صاد جو ہے عین کلمہ ہے، ماضی میں مفتوح ہے، ینصر یہ صاد جو ہے عین کلمہ ہے، مضارع میں یہ مضموم ہے۔ اسی طرح ماضی مفتوح العین، ماضی مفتوح العین ہی رہے گا، ماضی کیا ہوگا، مفتوح العین ہی رہے گا، لیکن مضارع تبدیل ہو جائے گا مضارع مکسور العین۔ اب مضارع میں عین کلمہ کیا ہوگا، مکسور ہوگا، جیسے ضرب یضرب، ماضی میں عین کلمہ را مفتوح ہے اور مضارع میں عین کلمہ را مکسور ہے، یضرب، را کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ ضرب یضرب اس کا دوسرا نام ہمارے پاس کیا ہوگا، ماضی مفتوح العین مضارع مکسور العین۔ اسی طرح پھر یہاں پہ ماضی مفتوح العین مضارع مفتوح العین، یہ نام اصل میں اس کا نہیں ہے، یہ ذرا اس کا کر میں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 جگہ بھی مفتوح العین آ رہا ہے۔ یہ فتح یفتح، یہاں پہ بھی ماضی کیا ہے، مفتوح العین ہے، ماضی کیا ہے، مفتوح العین ہے، عین کلمے کے مقابلے میں کیا ہے، یہ مفتوح ہے، اور مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح ہے، مضارع میں بھی کیا ہے، مفتوح ہے۔ فعل یفعل، فتح یفتح،
तो ये गोया कि आइन कलिमा माजी में क्या हो, मफ्तूह हो, ये 3 अबवाब हो गए। इसके साथ ज़म्मा भी आ सकता है, मुजारे में कसरा भी आ सकता है, फतहा भी आ सकता है। ये दूसरा देखें, माजी मकसूरुल आइन, माजी मकसूरुल आइन, मुजारे मफ्तूहुल आइन। अब ये माजी में आइन कलिमा मकसूर होगा, जैसे समीआ, फ़ाइला, मीम मकसूर है। मुजारे में आइन कलिमा मफ्तूह है, यस्माउ, यस्माउ मीम जो है मफ्तूह है। तो ये क्या हो गया, माजी मकसूरुल आइन, मुजारे भी मफ्तूहुल आइन। तो जब माजी मकसूरुल आइन हो तो इसके 2 अबवाब है। एक ये आ गया आखिरी बाब, माजी मकसूरुल आइन, मुजारे भी मकसूरुल आइन। जब माजी मकसूरुल आइन होगा 2 अबवाब आएंगे, एक समिअ यस्मअ और एक हसिब यहसिबु। माजी मकसूरुल आइन और मुजारे मकसूरुल आइन। माजी मफ्तूहुल आइन होगा तो 3 अबवाब आएंगे, नसर यंसुरु, ज़रब यज़रिबु, फतह यफ्तहु। और जब माजी मज़मूमुल आइन होगा, माजी मज़मूमुल आइन, तो एक ही बाब आएगा, यानी आइन कलिमा मज़मूम होगा, मुजारे मज़मूमुल आइन, बाकी नहीं आएंगे। करुमा यखरुमु, करुमा यखरुमु, ठीक है, ये भी समझ आ गई सबको। ये सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब समझ में आ गए सबको। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब सबको समझ आए कि नहीं? ये 6 अबवाब आपने याद करने, अजबर याद हो, ठीक है। दोनों किस्म के नाम जो है इनके आप याद कर ले, दोनों किस्म के नाम इनके आपने याद करने हैं, ठीक है। आगे सुलासी मजीद फी की फिर 2 किस्में हैं। सुलासी मजीद फी की क्या है, 2 किस्में हैं, बा हमजा वसल और बे हमजा वसल। बा हमजा वसल और बे हमजा वसल। सुलासी मजीद फी की कितने किस्में हैं, 2 किस्में हैं, बा हमजा वसल और बे हमजा वसल। तो बा हमजा वसल के 9 अबवाब है और बे हमजा वसल के 5 अबवाब है। बे हमजा वसल के 5 अबवाब है। तो आज हम बे हमजा वसल के 5 अबवाब पढ़ लेते हैं। बे हमजा वसल के कितने अबवाब पढ़ लेते हैं, 5 अबवाब पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ऊपर जो हमने सुलासी मुजर्रद में बात पढ़ी है, यहाँ पे एक और बात का भी इजाफा कर लें, यहाँ पे एक और बात का भी इजाफा कर लें। ये जो पहले 3 अबवाब है, ये पहले 3 जो अबवाब है, नसर यनसुरु, ज़रब यज़रिबु, समिअ यस्मअु, इन तीनों में आप देख रहे हैं कि माजी और मुजारी का आइन कलिमा मुख्तलिफ है। इनमें क्या है, आइन कलिमा मुख्तलिफ है। इनको उसूल अबवाब भी कहते हैं। असल अबवाब यही है, बाकी इनसे मिलके बनते हैं। इनको क्या कहते हैं, उसूल अबवाब भी कहते हैं। माजी और मुजारे में आइन कलिमा दोनों का क्या हो, मुख्तलिफ हो। माजी मफ्तूहुल आइन, मुजारी मज़मूमुल आइन। माजी मफ्तूहुल आइन, मुजारी मकसूरुल आइन। माजी मकसूरुल आइन, मुजारी मफ्तूहुल आइन। इन पहले 3 अबवाब में मुजारे और माजी में आइन कलिमा क्या मुख्तलिफ है, तो इनको क्या कहते हैं, उसूल अबवाब। और ये बकिया जो 3 है, ये बाकी जो 3 अबवाब है, इनमें माजी और मुजारे में आइन कलिमा एक जैसा है। जैसे फतहा यफ्तहु मफ्तूह है, करुमा यकरुमु दोनों में मजमूम है, हसीबा यहसिबु दोनों में क्या है, मकसूर है। तो इनको फुरू अबवाब कहते हैं। फुरू का माना होता है कि उसूल से निकले हुए, ऊपर वाले जो है इन्हीं से निकले हुए, तो इनको फुरू अबवाब कहते हैं। ये जो उसूल अबवाब है ये ज्यादा होते हैं,
फुरू अबवाब कम इस्तेमाल होते हैं, उसूल अबवाब ज्यादा होते हैं, फुरू अबवाब जो है ये कम इस्तेमाल होते हैं। ये क्या होते हैं? कम इस्तेमाल होते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? और ये जो यहाँ पे मैंने आपको बता दी ना, ये अलामात भी है इन अबवाब की, ये जो है अलामात है कि माजी मफ्तूह लैन, मुजारी मजमूम लैन, माजी मफ्तूह लैन, मुजारी मकसूर लैन, ये इनमें से हर एक बाब की अलामत है। इनमें से हर एक बाब की क्या है? अलामत है कि माजी मफ्तूह लैन होगा, मुजारी मजमूम लैन, ये नसर यंसुर की अलामत है। माजी मफ्तूह लैन होगा, मुजारी मकसूर लैन, ये ज़रब यज़रिबु की अलामत है। ये हर एक की अलामत है, ठीक है। तो सुलासी मुजर्रद को पहचानना ज़रा मुश्किल होता है, ये सुलासी मुजर्रद को पहचानना ज़रा मुश्किल होता है। इसका आसान सा तरीका ये है कि इंसान अरबी किताबों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करे। जितना ज़्यादा मुताला करेगा उतना ही फ़ायदा होगा, जितना ज़्यादा मुताला करेगा उतना ही फ़ायदा होगा। अच्छा, सुलासी की हमने दो किस्में पढ़ी, मजीद फ़ी और सुलासी मजीद फ़ी की, बा हमजा वसल और बे हमजा वसल। बा हमजा वसल के 9 अबवाब है, वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बे हमजा वसल के 5 अबवाब है, ठीक है। इफ़आल, तफ़ईल, इफ़आल, तफ़ईल, तफ़ाउल, इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल और तफ़ाउल, ये तरतीब रखें। इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल और तफ़ाउल, ठीक है। ये 5 अबवाब है। इफ़आल जैसे अल इकराम, इकराम, अकरम युकरिम इकरामन। तफ़ईल जैसे तशरीफ, सर्रफ युशर्रिफ तशरीफन। और मुफ़ाअला जैसे मुक़ातला, क़ातला युक़ातिलु मुक़ातलतन। तफ़ाउल जैसे तक़ब्बुल, तक़ब्बल यतक़ब्बलु तक़ब्बुलन। तफ़ाउल जैसे तक़ाबुल, तक़ाबल यतक़ाबलु तक़ाबुलन, ठीक है। ये 5 अबवाब आपने याद करने हैं, ये 5 अबवाब आपने क्या करने हैं? याद करने हैं। अब ये हर एक की अलामत है, अब हर एक की क्या है? अलामत है। ये अलामत आपने समझनी है। ये माजी में 4 हरूफ होते हैं, इसमें इफ़आल में क्या होते हैं? माजी में 4 हरूफ होते हैं, ठीक है। 3 असली होते हैं और 1 जायद होता है। इफ़आल की अलामत क्या है कि माजी में 4 हरूफ होंगे, अकरामा, 3 असली होंगे और 1 जायद होगा। अकरामा में काफ रा मीम जो है ये असली है और शिरों में हमजा जायद होगा, और ये जायद हर्फ भी आपको मालूम हो गया शिरों में आएगा। ये कहाँ पे आएगा? शिरों में आएगा। अफ़अला, अकरमा, तो बाब इफ़आल का तराजू आपके पास क्या होगा? अफ़अला होगा, यानी शिरों में क्या लगाएंगे? हमजा लगाएंगे। अब ये तफ़ईल की अलामत देखें कि इसमें भी माजी में 4 हरूफ होते हैं। माजी में कितने हरूफ होते हैं? 4 हरूफ होते हैं। 3 असली होते हैं और 1 जायद होता है। 3 असली होते हैं और 1 जायद होता है। जैसे सर्रफा, सर्रफा, इसमें हर्फ जायद जो होता है आयन कलमे के बाद आएगा। सर्रफा मुशद्दद होगा। फ़अला, सर्रफा, अब ये रा जो है जायद है, गोया कि आयन कलमे के बाद एक हर्फ जायद होता है इसमें, तो इसका वजन क्या होगा? फ़अला, सर्रफा, सर्रफा, ठीक है। इसी तरह तफ़ाउल की अलामत देखें, इसमें माजी में 5 हरूफ होते हैं। माजी में कितने होते हैं? 5 हरूफ। 3 असली होते हैं और 2 जायद, ठीक है। जैसे तक़ब्बला, तक़ब्बला, जायद कौन कौन से होते हैं? एक तो शिरों में ता होगा,
जायद कौन कौन से है? शीरों में ता और दरमियान में आयन का इजाफा होगा। शीरों में ता होगा और दरमियान में आयन, जैसे तक़ब्बला, फ़अला, फ़अला, शीरों में फा से पहले ता आ गया और उसके बाद आयन जो है मुशद्दद है, जिस तरह बाब तफ़ईल में आयन मुशद्दद है। इसी तरह मुफ़अला, इसकी अलामत क्या है कि माजी में 4 हरूफ होते हैं। माजी में 4 हरूफ, 3 असली और 1 जायद। और जायद कहाँ पे होगा? फ़अल युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन, दूसरी जगह अलिफ होगा, फा के बाद अलिफ, फा के बाद अलिफ जो है जायद होगा, फा के बाद अलिफ जायद होगा। इसी तरह तफाउल, इसकी अलामत समझें। माजी में कितने हरूफ होंगे? 5 हरूफ होंगे। माजी में 5 हरूफ होंगे, 3 असली होंगे और 2 जायद। अब ये 2 जायद कहाँ पे होंगे? एक तो शीरों में ता, शीरों में ता, शीरों में ता और फा के बाद अलिफ। तफाउल, तफाउल, तकाबुल, तकाबला, 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 यतकाबलु, ठीक है। तो ये बे हमजा वसल के 5 अबवाब हो गए, ये बे हमजा वसल के 5 अबवाब हो गए। तो आपने इनको जुबानी असबर याद करना है, ये बुनियाद है। आगे मजीद जो हम चीज़ें पढ़ेंगे और पहचान हासिल करेंगे अबवाब की, वो ये है, अगर आप ये अबवाब आप याद कर लेते हैं कि सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब है और सुलासी मजीद फी के कुल 14 अबवाब है, 9 बाब जो है बा हमजा वसल यानी हमजा वसल मौजूद होगा उसमें, और 5 अबवाब जो है बे हमजा वसल है, 5 अबवाब जो है बे हमजा वसल है, यानी इनमें हमजा वसल मौजूद नहीं होगा। तो हमने अभी तक तकरीबन 11 अबवाब पढ़ लिए हैं, 11 अबवाब सुलासी के पढ़ लिए हैं, 2 अबवाब कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो गोया कि कुल सुलासी के 20 अबवाब हो जाएंगे, 14 सुलासी मजीद फी के और 6 जो है सुलासी मुजर्रद के। सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब भी आपको जुबानी याद होने चाहिए और सुलासी मजीद फी के 5 अबवाब जो अभी हमने पढ़े ये भी आपको अजबर याद होने चाहिए। फ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाअला, तफ़ाउल, तफ़ाउल। इफ़ाल जैसे इकराम, तफ़ईल जैसे तसरीफ, मुफ़ाअला जैसे मुक़ातला, तफ़ाउल जैसे तक़ब्बुल, तफ़ाउल जैसे तक़ाबुल, ठीक है। और ये अलामत जो है ये आप इसको समझ लें, आप इसकी प्रैक्टिस करें कि ये अलामत कैसे बन रहा है, इन कौन से असली हरूफ है, जायद कौन से है, कौन को, इस तरह वो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके ज़हन में भी बैठ जाएगा और फिर पहचानने में भी आसानी होगी। जब आगे हम इजरा करेंगे तो पहचानने में भी आसानी होगी। कल इंशाअल्लाह बकिया अबवाब पढ़ लेंगे, बकिया जो अबवाब है वो पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद इनकी जो गर्दानें हैं वो एक मरतबा दोहराएंगे। इन अबवाब की जो गर्दानें हैं, माजी, मुजारे, फिर आगे माजी की मुजारी की जो अक़साम है, लम के साथ है, हरूफ नासिबा के साथ है, ताकीद के साथ है, इसी तरह अमर और नहीं, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल और इसमें ज़र्फ़ वगैरह की जो गर्दानें हैं एक मरतबा दोहरा देंगे, एक मरतबा इन तमाम अबवाब से दोहरा देंगे और वो एक ही दिन में या 2-3 दिनों में हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब आप ये करें कि आप थोड़ा सा खुद यानी ये काम कर लें कि सुलासी मुजर्रद के जो मुख्तलिफ अबवाब है, सुलासी मुजर्रद के जो मुख्तलिफ अबवाब है उनसे सिर्फ माजी आपने दोहरानी है, माजी, माजी, ठीक है। माजी और मुजारे बस दोहरा लें, माजी और मुजारे जो है सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब से दोहरा लें, ठीक है।
चूंकि फ़र्क जो है बस माजी और मुजारे में ही आता है, बाकी जितने भी अब आगे गर्दाने हैं वो मुजारे से ही बनते हैं। अमर मुजारे में आइन कलिमा जैसे होगा, अमर में भी वैसा ही होगा, नहीं में भी वैसा ही होगा, लम के साथ भी वैसा ही होगा, और हरूफ नासिबा के साथ भी वैसा ही होगा। इसी तरह बाब इफ़ाल से ये जो बे हमजा वसल है, इनकी भी आप माजी और मुजारी की गर्दान कर लें, माजी और मुजारी की गर्दान कर लीजिएगा। ठीक है, अब जरा देख लें कि कहाँ मुश्किल पेश आती है, कहाँ पे आपसे गर्दान होने में मुश्किल पेश आती है। कल फिर इंशाल्लाह मैं सबक के दौरान गर्दान भी करूंगा, तो इस तरीके से आपकी जो गलती होगी वो भी दुरुस्त हो जाएगी, और हमें मालूम हो जाएगा कि बाबी इफ़ाल, तफ़ाइल, तफ़ाउल, मुफ़ाअला और तफ़ाउल से कैसे गर्दान की जाती है। ठीक है, अमूमन हम सुलासी मुजर्रद की गर्दानें करते हैं और सुलासी मजीद फी की गर्दानें नहीं करते। इस वजह से फिर हमें डर लगा रहता है कि कहीं हम गलती ना कर जाए, तो ये डर लगा रहता है इस वजह से कि हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो अभी आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई गर्दान आपने छोड़नी नहीं है, कोई गर्दान आपने छोड़नी नहीं है। अल्लाह